Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum dear students. Hope you are in a best state of health and iman. I am here to teach you English of class 2 from City English School System. Today the date is 7th May 2020 and the day is Thursday. Our topic is the mice and the elephants यानी चूहे और हाथी. आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. सो ओपन योर पेज नंबर 20, यूनिट नंबर 3, द माइस एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी. लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह पत्थरों के बने हुए महल में रहता था. After many years, बहुत से साल गुजरने के बाद, the king grew old and died. King बूढ़ा हो गया और मर गया. Everyone left the palace. हर किसी ने महल को छोड़ दिया. Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. आहिस्ता आहिस्ता दीवारें महल की गिरना शुरू हो गईं और सिर्फ फर्श रह गया. Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. अब जो है फर्श की दरारों में सैकड़ों चूहे रहना शुरू हो गए. They lived with their sons and grandsons and grandfather and their grandmothers and they were all very comfortable. वो वहाँ पे अपने बेटों, अपनी दादी, अपने दादा, अपने पोतों के साथ रहते थे और बहुत मुतमईन थे अपनी ज़िंदगी से. They played games, had festivals and marriages, dramas and feasts. वो खेलते थे, गेम्स खेलते थे और बहुत से त्यौहार मनाते थे, शादियाँ होती थी उनकी और दावतें भी होती थी. They were all very happy. वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे. Come to page number 21 dear students. Near the palace was a large lake. पैलेस के महल के नज़दीक एक बहुत बड़ी झील थी. One day in a hot weather, एक दिन बहुत ही गर्मी के मौसम में, the elephant king came there with his herd and drink water. एक दिन गर्मी के मौसम में हाथी जो है वो अपने गोल के साथ पानी पीने के लिए आया. गोल यानी 3-4 हाथी उसके साथ और थे. The whole herd walked all over the floors of the palace. जो गोल था उसने पूरे पैलेस के महल के पूरे फर्श के ऊपर जो है वो वॉक करके आया, चल के आया. They killed many of the mice. उन्होंने बहुत से चूहों को मार दिया. The mice were very sad. तो चूहे थे वो बहुत उदास हो गए. They held a meeting. उन्होंने एक मीटिंग जो है वो रखी. These elephants will kill us all. उन सब ने सोचा कि ये जो एलिफेंट्स हैं ये हम सबको मार देंगे. They cried, what shall we do? परेशान हो गए कि हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए. Some of the mice went to the elephants. कुछ जो हैं वो चूहे एलिफेंट के पास गए. They said, oh friends, we live under the palace floors. If you walk over the floors on the way to the lake, you will kill us all. Please go along another path. One day we may help you. ओ हमारे दोस्त, हम पैलेस के फ़र्श पे रहते हैं. अगर आप उस फ़र्श के ऊपर से गुजरेंगे झील के रास्ते में आते वक्त तो आप हम सबको मार देंगे. आप प्लीज़ किसी दूसरे रास्ते से जाएं. हम एक दिन आपकी मदद ज़रूर करेंगे. The elephant king and his herd listened to the mice and agreed to use another path. Elephant उसके जो गोल हैं उन्होंने उसकी बात मान ली और दूसरा रास्ता अपना लिया. One day the elephant king and his herd were trapped in the forest by some hunters. एक दिन बादशाह हाथी और उसका गोल जंगल में कुछ शिकारियों की वजह से फंस गए. They were tied up with ropes. वो रस्सियों से बंध गए. Luckily, खुशकिस्मती से, one of the elephants escaped the trap. एक हाथी उस शिकारियों के चुंगल में से भाग निकला. Come to page number 22 dear students. He ran through the forest and called the mice. वो जंगल में से भागते हुए चूहों के पास गया और उनको बुला लाया. Hundreds of them came to help the elephants. उनमें से सैकड़ों जो हैं वो एलिफेंट्स की मदद करने के लिए आ गए. They bit through the ropes. उन्होंने रस्सियों को काटा and set the elephants free. और हाथियों को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया. The elephant thanked the mice. एलिफेंट्स ने उनका शुक्रिया अदा किया and they remembered the old saying,
Make friends, always make friends, however strong or weak. दोस्त बनाएं, हमेशा दोस्त बनाएं, चाहे वो मज़बूत हैं या कमज़ोर हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा है स्टोरी से, आपने मुझे ज़रूर बताना है. इसकी स्टोरी का लेसन ये है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे जैसा भी हो. Dear students, here are some dictation words for you to learn and to pronounce them. Number one word is cracks. Pronounce with me, cracks. Number two word is comfortable. Comfortable. R को जो है वो silent कर देंगे, comfortable पढ़ेंगे इसको. Number third word is festivals. Festivals. Number fourth, meeting. 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 Number five word, trapped. Trapped. डी को जो है वो थोड़ा सा साउंड को साइलेंटली पढ़ेंगे, ट्रैप्ड. नंबर सिक्स वर्ड इज़ लकीली. लकीली. नंबर सेवंथ, escaped. नंबर एट, remembered. remembered. आर ई को जो है वो थोड़ा सा साइलेंट करके remembered. Getting my point? You have to learn these dictation words and to write on your chart. Today our topic is syllables. Syllables क्या होते हैं ये आज हम आपको बताएंगे. Syllables की definition है, a syllable is a complete word or part of a word with one vowel sound. Syllable जो है वो एक पूरा लफ्ज़ या लफ्ज़ का एक हिस्सा जिसमें vowel sound हो, जिसमें vowel word हो, ए आई ओ यू में से कोई हो तो वो syllable कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल frog. frog में ओ जो है वो vowel है तो ये एक syllable हो गया. The vowel heard in a syllable could be from one or more vowel letters. ये ज़रूरी नहीं कि एक ही vowel हो, एक से ज़्यादा भी vowels जो है वो ए ई जो है इकट्ठा भी यूज़ हो सकता है तो वो भी syllable ही होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल boat. boat में ओ और ए जो है वो आ गया, इकट्ठा आ गया तो ये भी syllable है. लेटर वाई जो है वो कभी कभार vowel की साउंड निकाल लेता है, यानी वाई भी जो है ए या ई की साउंड निकालता है. फॉर एग्ज़ाम्पल cry. क्राई में आप वाई जो है वो ए की साउंड निकाल रहा है. बटरफ्लाई. फ्लाई वाई भी जो है वो ए की साउंड निकाल रहा है. द नंबर ऑफ वॉवल्स हर्ड इन अ वर्ड इक्वल द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड्स. वॉवल्स जो है वो उन्हीं के इक्वल होता है सिलेबल भी, यानी अगर एक पूरे वर्ड में जितने वॉवल्स यूज़ होंगे उतने ही सिलेबल होंगे, उतने ही पार्ट उस वर्ड के हो जाएंगे. जैसे स्ट्रिंग, नाइट. स्ट्रिंग में भी आई ही एक ही यूज़ हुआ है तो इसलिए स्ट्रिंग एक ही है, नाइट भी एक ही है. ठीक है, इसमें एक ही वॉवल यूज़ हुआ है तो ये वन सिलेबल ही है. रैकेट. रैकेट में कितने वॉवल्स यूज़ हुए ये आप अपने से कोई भी और दोबारा जो है वो स्टोरी को सुनना है और पेरेंट्स जो है वो बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपको मैंने क्वेश्चन 6 बताए हैं और उनको लिख लें अपने पास एक रजिस्टर पे. डेट विल बी बेटर. Here is sex traditions. Obey your parents. अपने पेरेंट्स का कहना माने. से सलाम करें. Clean yourself. अपने आप को, अपने environment को साफ़ रखें. Thank you so much. Let's say छुट्टी की दुआ. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अल्लाह हाफ़िज़. फ़ी अमानिल्लाह dear students.